Good morning, students. This is History, Class 8th, Chapter 5, When the People Rebel, and this is going to be our last class on this chapter. अब तक हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 31 दिसंबर 1600 में स्थापित हुई, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से भारत और एशिया के देशों के साथ व्यापार करने की परमिशन उनको मिल गई, लेकिन उसके अन्यायपूर्ण नीतियों के कारण भारत के लोग, राजा, नवाब, सिपाही, किसान, कबीलाई लोग इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने 1857 में विद्रोह करने का फैसला किया और इस विद्रोह में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंच गए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1859 के अंत तक पूरे भारत पर फिर से अधिकार कर लिया, लेकिन अब स्थिति पहले जैसी नहीं थी। अब भारत का शासन, भारत पर नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी का न होकर ब्रिटेन की महारानी का अधिकार हो जाता है। आओ विस्तार से जानें। Unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. It brought reinforcements from England, passed new laws so that the rebels could be convicted with ease, and then moved into the storm centers of the revolt. Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857. The last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was tried in court and sentenced to life imprisonment. He and his wife Begum Hazrat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. Bahadur Shah Zafar died in the Rangoon jail in November 1862. ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की सरकार से सहायता लेकर किसी तरह 1857 के विद्रोह को दबाया। ऐसे कानून पास किए गए जिसके द्वारा विद्रोहियों को आसानी से सजा मिल सके। दिल्ली पर फिर से सितंबर 1857 में नियंत्रण कर लिया गया। बहादुर शाह जफर जो विद्रोहियों का नेता था, जो पहले स्वतंत्रता संग्राम का जिसने नेतृत्व किया, जो अंतिम मुगल बादशाह था, को उसकी वाइफ, उसकी पत्नी बेगम हजरत महल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, रंगून भेज दिया गया, जहां बहादुर शाह जफर की नवंबर 1862 में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसको, बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। The capture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down. After that, people continued to resist and battle the British. The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of popular rebellion. Lucknow was taken in March 1858. Rani Lakshmibai was defeated and killed in June 1858. A similar fate awaited Rani Avanti Bai, who after initial victory in Kheri chose to embrace death when surrounded by the British on all sides. Tatya Tope escaped to the jungles of central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. He was captured, tried and killed in April 1859. Just as victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of rebel forces encouraged desertions. The British also tried their best to win back the loyalty of the people. They announced the rewards for the loyal landholders would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands. Those who had rebelled were told that if they submitted to the British
and if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied. Nevertheless, hundreds of sepoys, rebels, nawabs and rajas were tried and hanged. विद्रोहियों के, क्रांतिकारियों के नेता का गिरफ्तार होना, रंगून भेजा जाना 1857 के विद्रोह के अंत होने का परिचायक नहीं था। अंग्रेजों को पूरे भारत पर फिर से नियंत्रण करने के लिए 2 वर्ष लग गए। हालांकि लखनऊ को मार्च 1858 में नियंत्रण में कर लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई को जून 1858 में उसको हरा दिया गया और वो वीरगति को प्राप्त हुई। रानी अवंतीबाई जो मध्य प्रदेश में सैनिकों का नेतृत्व कर रही थी, उसने भी अपने आप को अंग्रेज सैनिकों से घिरा हुआ पाकर मौत को स्वीकार कर लिया। तांता टोपे जो नाना साहिब के जनरल थे, नाना साहिब जो पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे, तांता टोपे जंगलों में भाग जाते हैं। हालांकि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह में साथ दिया था। वो जंगलों में भाग जाते हैं और वहाँ से गुरिल्ला लड़ाई जारी रखते हैं कबीलाइयों के साथ, किसानों के साथ। हालांकि अंत में उनको पकड़ लिया जाता है, उन पर मुकदमा चलाया जाता है और 1859 में अप्रैल में उनको भी मार दिया जाता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग तरह से विद्रोहियों को हराने की कोशिश की। उन्होंने ऐसे प्रपोजल दिए कि जो भूस्वामी अंग्रेजों का जिन्होंने साथ दिया, उनको उनकी जमीन दे दी गई। इसके अलावा ये भी कहा गया, जिन विद्रोहियों ने श्वेत अंग्रेजों की हत्या नहीं की, उनको भी इनाम दिया जाएगा। उनका उनकी जमीन पर अधिकार ज्यों का त्यों रहेगा। हालांकि सच्चाई क्या थी, हजारों की संख्या में सिपाही, विद्रोही, नवाब, राजाओं पर मुकदमा चलाया गया, उनको फांसी दे दी गई। आफ्टरमाथ 1857 के विद्रोह के बाद द ब्रिटिश हैड regained control of the country by the end of 1859, but they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. Given below are the important changes that were introduced by the British. The British Parliament passed a new Act of 1858 and transferred the powers of the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of the Indian affairs. A member of the British Cabinet was appointed Secretary of the State of India and made responsible for all matters related to the governance of India. He was given a council to advise him, called the India Council. The Governor General of India was given the title of Viceroy, that is a personal representative of the Crown. Through these measures, the British government accepted direct responsibility for ruling India. इस तरह से 1859 के अंत तक भारत पर अंग्रेजों ने फिर से नियंत्रण कर लिया, लेकिन स्थिति पहले जैसी नहीं थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन होने की बजाय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटेन की संसद ने 1858 में एक नया कानून पास किया, जिसके द्वारा जो शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, वो शक्तियां अब ब्रिटेन की महारानी के पास चली गई। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की सरकार के अधीन चला गया। अब ब्रिटेन की जो कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल है, उसका एक सदस्य को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंट कर दिया गया, जो भारत के शासन की देखरेख करेगा, उसके बारे में निर्णय लेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो ब्रिटेन की कैबिनेट मंत्रिमंडल का सदस्य था, उसको एक इंडिया काउंसिल सलाह के लिए दे दी गई।
और जो गवर्नर जनरल होता था, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स, जो समय समय पर बनते थे, अब गवर्नर जनरल की जगह अब वॉइसरॉय बनाया जाने लगा। गवर्नर जनरल का स्थान अब वॉइसरॉय ने ले लिया। वॉइसरॉय का अर्थ है ब्रिटेन की जो महारानी है उसका व्यक्तिगत नुमाइंदा। इस तरह से बहुत सारे और भी जो कदम हैं वो उठाए गए, जिनमें all ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdoms. They were allowed to pass to their allowed to pass on their kingdoms to their heirs, including adopted sons. However, they were made to acknowledge the British Queen as the sovereign paramount. Thus, the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinates of the British Crown. It was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gorkhas, Sikhs and Pathans. The land and property of Muslims was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way. The British decided to respect the customary religious and social practices of the people in India. Policies were made to protect landlords and zamindars and give them security of rights over their lands. Thus, a new phase of history began after 1857. 1857 के बाद इतिहास में एक नई शुरुआत होती है। वो नई शुरुआत क्या होती है? न केवल भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी के सीधे हाथों में चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी भी से मध्य से एक तरह से रिमूव कर दी जाती है, हटा दी जाती है। इसके अलावा जो भारत के स्थानीय शासक थे उनको कहा गया कि उनके राज्य को आगे से हथियाया नहीं जाएगा। उदाहरण के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैक्स, सब्सिडरी अलायंस के द्वारा, जैसे व्यवस्था के द्वारा। इसके अलावा जिस तरह से झांसी की रानी के शासन को, के क्षेत्र को, के राज्य को, झांसी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधीन कर लिया था, अब कहा गया कि अगर कोई राजा जिसका कोई पुत्र नहीं होता, उसके राज्य को भी ब्रिटिश सरकार अपने अधीन नहीं करेगी। अब गोद लिए हुए जो पुत्र है उसके द्वारा भी राजा अपने शासन चला सकते हैं। हालांकि जो भारतीय राजा होंगे उनको ब्रिटेन की महारानी को सर्वोच्च मानना पड़ेगा, सुप्रीम मानना पड़ेगा। कहने का मतलब है भारतीय शासक अब ब्रिटेन की महारानी के अधीन होंगे। इसके अलावा सेना में भारतीय जो सिपाही थे उनकी संख्या कम कर दी गई, जो यूरोपीय सिपाही थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। इसके अलावा जो सिपाही अवध से, बिहार से, मध्य भारत से और दक्षिण भारत से थे, वहां से सिपाही लेने की बजाय, भारतीय सिपाही लेने की बजाय सेना में गोरखा, सिख और पठान सेना में नियुक्त किए गए। मुसलमानों को 1857 के विद्रोह का विशेष रूप से जिम्मेदार माना गया। उनसे भारी मात्रा में उनकी जमीन और संपत्ति ले ली गई और इसके अलावा यही निर्णय लिया गया कि भारतीयों से उनके धार्मिक और परंपरागत जो उनके रीति रिवाज हैं उनका आदर किया जाएगा और जो भारतीय भूस्वामी हैं, जमींदार हैं, उनसे भी उनके अधिकार नहीं लिए जाएंगे। फॉर अ हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस। जब भारत में
1857 का विद्रोह चल रहा था, उसी वक्त चीन में भी एक ऐसा विद्रोह चल रहा था. While the revolt was spreading in India in 1857, a massive popular uprising was raising in the southern parts of China. It had started in 1850 and could be suppressed only by the mid 1860s, जो 1850 में शुरू हुई और 1860 के मध्य में जिसको दबा दिया गया. ये क्रांति, ये विद्रोह किसके बारे में था, इसका नेतृत्व किसने किया, इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में जानें. Thousands of laboring poor people were led by Hong Xiaokon to fight for the establishment of the Heavenly Kingdom of Great Peace. This was known as the Taiping Rebellion. चीन की इस विद्रोह को, इस क्रांति को ताइपिंग रेबेलियन कहा गया. नेतृत्व होंग जियाक्वान ने किया, जो जिसने बाद में ईसाई धर्म स्वीकार किया था, और चीन के जो गरीब लोग थे, जो मजदूर लोग थे, उन्होंने उसका साथ दिया. जो होंग जियाक्वान था, जिसने ईसाई धर्म अपनाया था, जिसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, उसने कहा कि जितने भी चीन के जो परंपरागत धर्म हैं उनको समाप्त कर दिया जाए. उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियनिज्म को समाप्त कर दिया जाए और उनके स्थान पर ईसाई धर्म का जो एक प्रकार है उसको स्वीकार किया जाए. और जहां जो व्यक्तिगत संपत्ति जिनकी है, इस नए धर्म के अनुसार, नए ईसाई धर्म के अनुसार किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी. समाज में कोई छोटा बड़ा भेदभाव नहीं होगा. पुरुष और महिला में कोई भेदभाव, कोई अंतर नहीं होगा. लोग अफीम, तंबाकू, शराब और जुआ इत्यादि वेश्यावृत्ति, दास प्रथा आदि गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे. लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं की सहायता से चीन के सम्राट किंग डायनेस्टी के सम्राट ने ताइपिंग विद्रोह को दबा दिया. थैंक्स.